Hello students, good morning all of you. Today I am here for the fourth activity of the Unit 3 Nasruddin's AIM, covering the competency of creative writing today. At the end of today's activity, you will learn to write sentences about different games and to find out the rules and particular words related to games. Now coming to your textbook, page number 54. Let's play. First, fill in the grid with words given below. You can use one word more than once. Now see, there are some words written in this box. Okay, let's read these words and you also repeat after me. Stick, bat or ball. 11. Table, racket, ball, football, stadium, 2 to 4, and the last word is ground. What do you think all these words are related with? Yes, you are right. Games, right? So, now look at the table given below. In the first column, name of the game is written. Okay. Below this, cricket, hockey, table tennis, football. These are the games. Second column heading is what you play with. इन गेम्स को आप किस किस के साथ खेलते हो, ठीक है, किस चीज़ की हेल्प से आप इनको खेलते हो उसका आपको नाम लिखना है. इन थर्ड कॉलम वेर यू प्ले इट, आप इन गेम्स को कहाँ खेलते हैं, ठीक है. फोर्थ कॉलम नंबर ऑफ प्लेयर्स, इसके इन गेम्स में कितने प्लेयर्स खेलते हैं. ओके, आपको वर्ड्स ऊपर बॉक्स में दिए हैं, उन्हीं वर्ड्स को आपको नीचे कॉलम में फिल करना है. सो द फर्स्ट गेम इज क्रिकेट. व्हाट यू प्ले विद द हेल्प ऑफ बैट और बॉल. ओके, वेर यू प्ले इट इन द ग्राउंड, राइट. हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन द क्रिकेट. क्रिकेट के गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11. सेकेंड गेम इज हॉकी. व्हाट यू प्ले विद, किससे खेलते हो हॉकी? स्टिक एंड बॉल. वेर यू प्ले इट? इन द स्टेडियम. नंबर ऑफ प्लेयर्स 11. Likewise, table tennis. What you play with? Ball, racket. Where you play it? Stadium. And number of players 2 to 4. Okay. इसी तरह से फुटबॉल. फुटबॉल को आप कैसे खेलते हो? फुटबॉल की हेल्प से. कहाँ खेलते हो? इन द स्टेडियम. एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स 11. अब आपको क्या करना है, इस कॉलम में आपने हर गेम के बारे में कुछ ना कुछ बताया है ना, तो आपको उन वर्ड्स को यूज करके, यूजिंग द वर्ड्स, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस. फर्स्ट, क्रिकेट. अब क्रिकेट के ऊपर 3 सेंटेंसेस लिखने हैं. जैसे क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, बाहर खेला जाता है. वी प्ले इट विद अ बैट एंड अ बॉल. थर्ड सेंटेंस, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम. Like this, frame sentences for other games also. हॉकी के लिए भी आप इसी तरह से 3 sentences लिखिए. टेबल टेनिस के लिए भी लिखिए एंड फुटबॉल के लिए भी लिखिए. ओके, डू इट बाय योरसेल्फ. इफ यू डू नॉट understand how to write, then you can take help from this page. Let's read for hockey. Hockey is an outdoor game. We play it with a stick and a ball. There are 11 players in this game. Table tennis is an indoor game. अंदर खेला जाता है. We play it by using a table, a racket and a ball. ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना इस गेम के लिए. There are 2 to 4 players in this game. अगर individual game है तो 2 players है ना. If it is a team game, अगर team game है तब 4 players की ज़रूरत पड़ती है. 2 players in each team. Football is an outdoor game. How do we play football? With the help of a football, है ना. So there are 11 players in this game also. Football में भी 11 players होते हैं. So students, do it and write these sentences in your textbook. Now coming to the next page, page number 55, third question. The following words are used in various sports.
List them under the sport they are used in. नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं. लेट्स रीड दीज वर्ड्स फर्स्ट. ओके. गुगली, गोल, LBW, पेनल्टी, फ्री किक एंड F is पेनल्टी कॉर्नर. हैव यू एवर हर्ड ऑफ दीज वर्ड्स? क्या आपने पहले इन वर्ड्स को कहीं सुना है? गेम्स में, स्पोर्ट्स में सुना होगा ना. तो हर गेम में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. अब आपको नीचे कॉलम बनाया ना, 3 गेम्स के नाम लिखे हुए हैं, हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल. सो यू हैव टू राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू दीज स्पोर्ट्स. ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट वर्ड. A is googly. Googly is used in which game? This term is used in cricket. Okay. B is goal. Goal is used both in hockey and football. Okay. जब बॉल नेट के अंदर चले जाती है तो बोलते हैं ना गोल हो गया. गोल अगर हो जाता है तो वो एक स्कोर भी माना जाता है उस टीम के लिए, है ना. C is LBW. LBW is used in cricket. अगर कोई LBW हो जाए तो वो आउट माना जाता है ना. ऐसे ही पेनल्टी कॉर्नर, गोल, पेनल्टी, ये सब हॉकी से रिलेटेड हैं. फुटबॉल से रिलेटेड वर्ड्स क्या हैं? गोल, फ्री किक एंड पेनल्टी. नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. अ puppet head. You have to make a puppet head and you can use this puppet head as a hand puppet for you. आप इसको हैंड पपेट की तरह यूज़ कर सकते हो. हाउ विल यू मेक इट? इसके लिए आपको एक ओल्ड, कोई भी पुरानी टेनिस बॉल होगी आपके पास, उसका यूज़ करके बना सकते हैं. ठीक है. उसमें आपको क्या करना है? एक टेनिस बॉल की ज़रूरत पड़ेगी, एक निडल की ज़रूरत पड़ेगी. नीचे लिखा है ना, यू नीड वूल. ठीक है. कलर्ड क्लॉथ. फर्स्ट इज स्टार्ट विद द हेड. अब इसका हेड कैसे बनाएंगे? इसमें एक आपको छोटा सा होल करना है, ठीक है, बॉल में, और उसको एंड पुश ए लॉन्ग थिक निटिंग नीडल. जिससे मम्मी हमारी स्वेटर बुनती है ना, वो वाली निटिंग नीडल को आपको उसमें होल में डाल देना है. द नीडल गोज इन ऑन वन साइड. एक साइड नीडल चली जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल उसको ऐसे फिक्स करना है कि वो टाइट रहे उस बॉल में, जैसे पिक्चर में दिखाया है ना. द होल नीड्स टू बी वेरी स्मॉल. और जो होल है वो छोटा ही होना चाहिए, तभी तो टाइट रहेगी निडल, ये जो नीटिंग नीडल है. ओके, so that it is difficult to push the needle in. In this way it will fit tightly and remain firm when you play with your puppet. उसके बाद आपको क्या करना है? Now cut the thick top of an old nylon sock. कोई भी आपका पुराना जुराब होगा, ठीक है, तो उसका यूज़ करके आप उसके क्लॉथ बना सकते हैं. ओके, उसको आपको जैसे पिक्चर में दिया हुआ है इस तरह से एडजस्ट करना है. उसके 2 कॉर्नर में आप होल कर देंगे जहाँ से आप अपनी फिंगर डाल सकते हैं. ओके, उसके बाद आप कुछ कलर्ड वूल लेंगे, ऊन लेंगे, और उससे आप इसके हेयर्स बनाएंगे, और मम्मी की हेल्प लेकर आप इसके ब्रेड भी कर सकते हो. ठीक है, जैसे आप अपनी ब्रेडिंग करते हो ना, बालों की चोटी बनाते हो, वैसे उसको आप इसके सिर पर पेस्ट कर देंगे. अब आप नीचे से जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया है इस तरह से इस पपेट को अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, और जो ऊपर जो कपड़े पर आप 2 होल करोगे ना, वहाँ से अपनी फिंगर निकाल सकते हो, जो कि इस पपेट के हैंड्स लगेंगे. अंडरस्टूड? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. डू इट. ओके, उसके बाद आप क्या करोगे? इन द टेक्स्ट बुक राइट 2 sentences ऑन योर पपेट. आप इसके ऊपर 2 sentences लिखेंगे. ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर पूछ सकते हैं. आप फिर इसके जो इसका जो फेस है उस पर 2 eyes आप पेंट कर सकते हो, या फिर बटन्स हो छोटे छोटे वो डाल सकते हो. ठीक है, पेंट करके नोज और लिप्स भी बनाएंगे. नाउ दिस इज द होम असाइनमेंट. Do page number 54 and 55 in your textbook. Okay. Second is make a hand puppet of girl. Help आप पेज 56 और 57 से देख करके आप बनाएंगे. Write 10 sentences on my favorite game.
आपका जो भी फेवरेट गेम है उसके ऊपर आप 10 सेंटेंसेस लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए ना, जो भी आपका फेवरेट गेम है उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो डू इट।